वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवतो सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जगत श्री प्रभुपाद जय। जय श्री श्रीपाद गुरु महाराज जय। समेत गौर भक्त वृंद की जय। जय भागवत श्रवणकारी श्रोता वृंद की भक्त वृंद की जय। So today we will discuss about Srimad Bhagavatam 6th canto 12th chapter 18-19 verse. So Sukha uvacha Sukha uvacha Indra Vrutravacha Srutva Indra Vritta Vacha Srutva Gatalikam Gatalikam Apujayat Grihita Vajra Prahasamsa Grihita Vajra Prahasamsa Tam Aha Gata Vismayah. Tam Aha Gata Vismayaha. Sri Sukha uvacha Sri Sukha uvacha Indra Vritravacha Srutva Indra Vritra Vacha Srutva Gatalikam Apujayat Gatalikam Apujayat Grihita Vajra Prahasams Grihita Vajra Prahasams Tam Aha Gata Vismaya. Tamaha Gata Vismaya. Sri Sukha uvacha Sri Sukha uvacha Indra Vritra Vacha Srutva Indra Vrita Vacha Srutva Gatalikam Apujayat Gatalikam Apujayat Grihita Vajra Prahasams Grihita Vajra Prahasams Tam Aha Gata Vismaya. Tamaha Gata Vismayaha. What word meaning? Sri Sukha uvacha. Sri Sukadev Goswami said, Indra, King Indra, Vritra Vacha, the words of Vritrasura, Srutva, hearing, Gata Alikam, without duplicity, Apujayat, worshipped, Grihita Vajra, taking up the thunderbolt, Prahasan, smiling, Tam, unto Vritrasura, Aho, said, Gata Vismaya, giving up his wonder. Translation. Translation. Sukadev Goswami said, hearing the straightforward, instructive words of Vritrasura, King Indra praised him and again took the thunderbolt in his hand. Without bewilderment or duplicity, he then smiled and spoke to Vritrasura as follows. Translation and purport by His Divine Grace Abhay Charana Aravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada ki Jai. So, purport. King Indra, the greatest of the demigods, was astonished to hear the instructions of Vritrasura, who was supposed to be a demon. He was struck
with wonder that a demon could speak so intelligently. Then he remembered great devotees like Prahlad Maharaj and Bali Maharaj, who had been born in the family of demons. And thus he came to his senses. Even so-called demons sometimes have exalted devotion for the Supreme Personality of God. Therefore, Indra smiled reassuringly at Vritrasura. Oh, okay. So next, 6th canto, 12th chapter, 19. Indra uvacha oho danava siddhosi yasya te mati ridrusi bhaktah sarvat manat manam suhridam jagat iswaram. What word meaning? Indra uvacha. Indra said, "Oh, hello, Danava, O demon, Siddha, Asi, you are now perfect. Yasya, whose, te, your, matihi, consciousness, idrishi, such as this, bhaktaha, a great devotee, sarva atmana, without diversion, atmanam, to the super soul, Suhridam, the Supreme Personality of Godhead. Translation. Indra said, O great demon, I see by your discrimination and endurance in devotional service, despite your dangerous position, that you are a perfect devotee of the Supreme Personality of Godhead, the super soul and friend of everyone. Translation and purport by His Divine Grace, Abhay Charana Aravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada ki Jai. As stated in Bhagavad Gita, 6 chapter 22 verse, Yam labdhva chaparam labham manyate nadhikam tatah yasmin sthitana dukhena guru napi vichalyate. Established in Krishna consciousness, one never departs from the truth, and upon gaining this, he thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of the greatest difficulty. An unalloyed devotee is never disturbed by any kind of trying circumstance. Indra was surprised to see that Vritrasura, undisturbed, was fixed in devotional service to the Lord. For such a mentality is impossible for a demon. However, by the grace of the Supreme Personality of Godhead, anyone can become an exalted devotee. Striya Vaishyas Tatha Sudras, Striya Vaishyas Tatha Sudras, Teopi Yanti Param Gatim. An unalloyed devotee is sure to return home back to Godhead. ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं मुक्तं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दं माधवं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So here सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को,
तो ये हम 12वां चैप्टर कैसे वृत्रासुर इतने बड़े महान भक्त है उसका एग्जाम्पल हम यहीं पे देख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं ये कथा कि इंद्रदेव ने ये वृत्रासुर से सुनने के बाद ये अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शन उपदेश, जैसे हमारे उपदेश अमृत है उसी तरह अभी युद्ध क्षेत्र में हमारे ये वृत्रासुर जो है इंद्र जी को उपदेश दे रहे हैं। परंतु हम देखते हैं कि जब भी आमने सामने युद्ध होती है तभी क्या होता है ना, एक दूसरे से पूरा पंगा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और ए टीम बी टीम को कुछ सलाह नहीं देते। बहुत रेयर ऐसे मिलते हैं। इसको कहते हैं रियल योद्धा। जैसे महाभारत युद्ध में देखा जाता है कि युद्ध के बाद जो समय होता है, समय के बाद आपस में सब मिलते रहते थे और अच्छे बातें भी कहते थे। तो उसी तरह इसको कहते हैं रियल योद्धा। तो रियल योद्धा में से ये रियल योद्धा भी नहीं है बिल्कुल, ये रियल जो कहते हैं राक्षस, डेमन, डेमन भी नहीं कहते, ये तो पूरा इतने सुंदर अच्छे भगवान के भक्त है कि उसको हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इतना शत्रु होके, राक्षस होके और ये इतने ही अच्छे से सुंदर ढंग से सुंदर से बात कर रहे हैं, इंद्रदेव को उपदेश दे रहे हैं। ये सबसे इसलिए ये वृत्रासुर में जो कथा है सभी लोग हम इनको याद रखना चाहिए हर समय में। क्यों? इसका सवाल भी आ सकता है, क्यों हम इसको क्यों याद रखें ना। एक डिवोटी होने के नाते हम इतने भक्त कर रहे हैं और हम भक्त होने के नाते हमको ये एग्जाम्पल, ये जो आदर्श हम अपनाना चाहिए। जैसे कि वृत्रासुर जी ने हमको कहकर सुनाए। वास्तविक वृत्रासुर जो है राक्षस है, परंतु राक्षस कुल में पैदा होते ही इतने अच्छे शुद्ध भक्त की कथा कह रहे हैं, वही हमको याद में रखना चाहिए और याद में रखते हुए अपना जिंदगी में उतारना चाहिए। एक्चुअली वास्तव में देखा जाता है वैष्णव आते हैं, वैष्णव होते हैं कि भक्त होते हैं। भक्त जीने के लिए नहीं चाहते हैं, भक्त चाहते हैं हाउ टू डेथ, मतलब हम कैसे शरीर छोड़े, इसके लिए हमारे ये इतने प्रयास, इतने साधन, इतने भक्ति, इतने प्रचार, सिर्फ एक ही लक्ष्य है। हमारे लक्ष्य एक ही है, वो है हम कैसे शरीर छोड़े। परंतु उससे पहले हमको इतना सौभाग्य है हम लोग कि ये हम लोग इसको हम फॉर्चुनेट माने या अनफॉर्चुनेट, बाय डिफॉल्ट हम लोग इधर पहुंच गए हैं और ये भागवत कथा भक्तों के बीच में ये चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसलिए हम इसका फायदा जरूर उठाएं। कैसे ना, वृत्रासुर जैसे वो इतने बड़े राक्षस है, राक्षस होकर भी वो क्या कर रहे हैं ना, भक्ति के बारे में, एक शुद्ध भक्ति के बारे में उपदेश दे रहे हैं इंद्र जी को। इंद्र भी भगवान के भक्त हैं। तो जब भी अपने लालसा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए हम लोग जो कूद पड़ते हैं, उससे हम पूरा उबर कर जैसे ये वृत्रासुर का उपदेश लेना चाहिए। हालांकि इंद्रदेव का हाथ से भी ये वज्र गिर गया और वो भी गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, और ये उनके हाथी भी, ऐरावत हाथी जो है वो भी पड़े हुए थे। बाद में वो उपदेश, और इंद्र जी उठ के भी फिर वृत्रासुर का एक हाथ भी कट दिए।
तो भी वो इतना अच्छे उपदेश दे रहे हैं। और उसको क्या कह रहे हैं कि इंद्र तभी अभी कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े साधु जो है, प्रहलाद महाराज, बड़े महाराज, वो लोग राक्षस कुल में पैदा होते हुए भी इतने अच्छे भक्ति कर पाए। उनका ये जो रियलाइजेशन हुआ, ये जो ज्ञात हुआ, ये जो ज्ञान आया, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम लोग इतने भक्ति कर रहे हैं, और इतने भक्ति में कितने साल से, कई साल से हैं, चाहे जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे कहीं भी हो, तो इसको सबसे अच्छी तरह गौर से ध्यान देना चाहिए और लेना चाहिए। क्या ना, वृत्रासुर, ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि वो इतने वृत्रासुर इतने इंटेलिजेंटली से बात कर रहे हैं कि वो राक्षस कुल में पैदा हुए हैं, और किसी भी परिस्थिति में हमको देखेंगे, ये डिवोशन परसेंट दूसरा श्लोक में है, कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी करें, हम किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हो, तो भी हम विचलित नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ प्रभुपाद जी क्लियरली लिख रहे हैं। और इसमें क्या कह रहे हैं, पहले तो ये है, एस्टेब्लिश्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस वन नेवर डिपार्ट्स फ्रॉम द ट्रूथ। कुछ भी हो जाए, चाहे गले कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु हम सत्य को छोड़ना नहीं चाहिए। वही सत्य जो है, वही हमारा आधार है, वही हमारा सबसे बड़ी विजेता है, सबसे बड़ी जय है उसमें। तो उसी तरह हमारे जो ये भक्ति जो है, भक्ति में रहना ही और भक्ति करना ही हमारे सबसे विजेता है, सबसे विजय है। उसके लिए कितने भी परिस्थिति, कितने भी बुरा हो, परिस्थिति कितने भी खराब हो, परिस्थिति कितने भी साथ ना दे, परंतु हमारा कर्तव्य यह है कि भक्ति के साथ देना, भक्ति में ही रहना, भक्ति ही करना। मेरे सुझाव, मेरे जो विचार है, मेरे जो ज्ञान है, छोटे से दिमाग से जितना भी मैंने संग्रह कर पाया, मेरे को लग रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसी श्लोक में, इसी दो श्लोक में जो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, वह दानव सिद्धोसी, दानव होकर भी, राक्षस होकर भी, इसी ओ ग्रेट डेमन, I see by your discrimination and endurance in devotional service, despite your dangerous position, that you are a perfect devotee of the Supreme Lord. क्यों ना, भगवान जो है सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों का बंधु। एक्चुअली बंधु हम जो कहते हैं मित्र है, और हमारा रिलेटिव्स है, हमारे बंधु है। कोई किसी का बंधु नहीं बनते बगैर स्वार्थ का, कोई किसी का बंधु नहीं, मित्र नहीं बनते बगैर स्वार्थ का। तो ये बात हम अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए। सिर्फ अकेला ही सुहृदम सर्वभूतानाम, वो है भगवान कृष्ण, वो है भगवान, और उसके अलावा कोई है ही नहीं फ्रेंड, मित्र कोई होते ही नहीं। चाहे पिता माता हो तो भी उनके कुछ ना कुछ आशा रहती है, क्या है, बुढ़े होने के बाद मेरा बेटा मेरे को देखेगा। और चाहे पत्नी हो, पति हो, कुछ ना कुछ आशा रहती है। एक तो पक्षी है और एक तो गाय है। सन 1999 में मैं मीरा रोड में कथा सुन रहा था, तभी श्री श्रीमद राधा गोविंद महाराज जी कह रहे थे इसके बारे में। तो बहुत 7 दिन का कथा चल रही थी, तो उसी समय में महाराज जी अच्छे से ढंग से कह रहे थे कि बाकी सभी जो है अपने स्वार्थ के, निजी स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए सब भागते रहते, दौड़ते रहते, पीछे लगते रहते। परंतु भगवान जो है सुहृदम, ये जो श्लोक में लिखा गया है, सुहृदम जगत ईश्वरम, वो है जगत की ईश्वर, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और ही इज द ग्रेट फ्रेंड।
उनके अलावा, भगवान के अलावा हमारे कोई फ्रेंड है ही नहीं। ये बात को हम भूल जाते हैं, खैर भूल जाते हैं, वही हमारे गलती हो जाता है। जब तक हम ये 24 घंटे याद रखेंगे कि नहीं, भगवान ही हमारे सुहृदय व्यक्ति, बाकी सब आयाराम गयाराम, बाकी सब ऐसे आएंगे जाएंगे, परंतु भगवान जो है हमारा साथ देते रहते हैं। परंतु हम क्या करते हैं, भगवान के साथ छोड़ देते हैं, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रखते, भगवान के ऊपर हम इतना गौर नहीं देते। परंतु भगवान हमारे हर समय, हर पल 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 हर पल हमारे ही देखभाल करते हैं। तो इसलिए हमारे फर्ज बनता है, हमारे ये सेवा बनती है कि हम भगवान को ही सेवा करें, चाहे कितना कष्ट आए, चाहे कितना सुख आए, चाहे कितना आनंद आए, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, सच बोले और भगवान की ही सेवा करें। इसीलिए आज इतने बड़े राक्षस है, राक्षस वृत्रासुर, उनको चरित्र हम सामने लें तो हम काय का मनुष्य है, कौन सा भक्त है, कौन सा इतना बड़ी भक्त है। इससे कहते हैं कि स्त्रीय वैश्यास तथा शूद्रास तेपि जानती पराम गतिम। तो चाणक्य जी ने कहते हैं, और नीति शास्त्र में कहते हैं, और भागवतम भी कहते हैं, ये स्त्री, वैश्य, शूद्र और राजा, ये सब बहुत कठिन है उनको भगवान की परम धाम, परम गति, परम स्थान को लौट के जाने के लिए। परंतु ये लोग भी भक्ति करके आराम से जा सकते हैं, आनंद से जा सकते हैं। ये कितने अच्छी मार्ग है, देखिए कैसे ना भगवान की भक्ति करने से भगवत धाम, परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो वृत्रासुर कह रहे हैं, यानी वो पूरा भक्ति प्रैक्टिस करते हुए कह रहे हैं, अपने आचरी परर सिखावे। तो वो जो कह रहे हैं वो एक्चुअली खुद कितना गहरी भक्ति में है। तो इसलिए हमको भी इतना गहरी भक्ति करते हुए ये जो वृत्रासुर के उपदेश जो है, वृत्रासुर इतने बड़े राक्षस होकर भी, इतने परिस्थिति में रहकर भी अपने प्राण संघर्ष में है, पूरा जिंदगी सामने मरने वाले हैं, वो एक्चुअली प्राण देने वाले हैं, और उनको बोल रहे आप वो अस्त्र उठा के मेरे को मार। तो इसलिए इंद्र भी विचलित हो गए, तो ये काय का राक्षस है, राक्षस तो अपना मृत्यु के लिए मेरे को आदेश दे रहे हैं और इतना मेरे को धिक्कार रहे हैं, मेरा जिंदगी की बेकार है। एक्चुअली इंद्र सबसे गाली सुनता रहते हैं, क्योंकि उनका जो निजी स्वार्थ, आशा, इच्छा, ये सब वगैरह, ये कहने का मतलब है इंद्र कुछ भी हो, हमको उनसे लेना देना है, परंतु वो जो रोल कर रहे हैं वो हमारे लिए इतने बड़ी शिक्षा महत्वपूर्ण है। देखिए, तो हम ये जो वृत्रासुर जैसे बुद्धि होना चाहिए, हम इंद्र जैसे राजा नहीं बनना चाहिए हम लोग, और इंद्र जैसे हम पॉलिसी वगैरह नहीं करना चाहिए। हम क्या करना चाहिए ना, प्रहलाद महाराज, बड़ी महाराज, जिन्होंने इतने बड़े प्रतिकूल स्थान में, कहते हैं ना, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। सो प्रतिकूल में रहते हुए हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएशन कैसे मिलेगा, ये मिलेगा। देखो उन लोग का एसोसिएशन कहां से आ रहा है, गुरु की वाणी से। गुरु जो वाणी दिए
उसको ही पकड़ के चले हैं, उस पे डटे रहे हैं, उसमें खड़े रहे हैं, उसको ही सेवा में जिंदगी समझ करके बिता रहे हैं। हमारे अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बस एक ही कथा पाश्चात्य देश में जाके ये सनातन धर्म का प्रचार कीजिए। तो उनके वाणी किनके, अपने आराध्य गुरुदेव की वाणी लेते हुए जिंदगी बिताए। 12 साल में 14 बार परिक्रमा किए पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील स्वरूप दामोदर गुरु महाराज को बोले कि ये अमेरिका सब आते हैं, पैसे कमाते हैं, शादी करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेके जाते हैं, और आप किसके लिए आए हो, आप क्या करना चाहते हैं? तो प्रभुपाद जी ने ये ज्ञान दिए कि इधर आके कुछ दे के जाओ। तो इसलिए श्रील श्रीपाद गुरु महाराज भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट सर पे उठाए, श्रील प्रभुपाद जी का, उनके आराध्य गुरुदेव का आज्ञा उठाए, सर पे लिए और चल पड़े। बस इंस्टीट्यूट बनाए, इंस्टीट्यूट का इतना दायित्व संभाले। और हालांकि गुरु महाराज की परिस्थिति, प्रभुपाद जी की परिस्थिति इतना अनुकूल नहीं था, और हम आते ही देखते हैं प्रभु जी हमारे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तब तो भी मैं कर सकता हूं। परिस्थिति कितना भी प्रतिकूल हो, चाहे कितना भी डांट पड़े, कितना भी परेशानी हो, कितना भी कष्ट झेले, कष्ट झेलने से प्रभुपाद जी कहते कष्ट कले कुष्ठ पावे। So, if you will work hard for Guru and Gauranga, then Krishna will come. Then we will get Krishna consciousness. Then we will get Param Dham, Param Gati, back to home, back to Godhead. Then we will go to back to Godhead. Otherwise, you cannot. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। इसका मतलब है जानबूझकर कष्ट नहीं। गुरु आराध्य गुरुदेव के लिए, गुरुदेव की इंस्ट्रक्शन, देयर इज टू सर्विस, बप्पू सर्विस, वाणी सर्विस। सो इंस्ट्रक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन बप्पू, बोथ आर इंपॉर्टेंट, बट इंस्ट्रक्शन। सो उपदेश में जो है, आज इंद्र वो क्या करे, उनके शत्रु जो है, डेमन जो है, राक्षस है, वृत्रासुर की ग्लोरीफाई कर रहे हैं। क्यों ना? वास्तव ट्रू, वो अप्रिय सच है, इसके लिए, और उसको मन पूरा मिल गया, नहीं नहीं ये तो सही डिवोटी है, हम क्या डिवोटी है, हमसे तो पूरा प्योर डिवोटी है ये। तो इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्डली वो कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वो भी, और इंद्र भी परेशान हो गए, बोले इतने महान भक्त है कि हमको ऐसे ही हम भक्ति करना चाहिए, ऐसे ही हम गुरु के आदर्श लेना चाहिए, और हम हमारे परिस्थिति कितने भी डिफिकल्ट हो, कितने भी मुसीबत में आए, कितने भी, अरे भाई कुछ ना कुछ मुसीबत झेलने से भगवान की ये जो परम धाम, वो जो चिंतामणि धाम, वो जो परसमणि से निर्मित हुआ है वो जो धाम, और वो धाम में वांछा कल्पतरु जो रहते हैं, भगवान मुरली पकड़ के त्रिभंगी ठाणी में श्याम सुंदर रूप में वैजयंती माला डाल के, कस्तूरी तिलक लगा के, और भगवान को आशीर्वाद देते हुए अपने इशारा से, भगवान कुछ नहीं करते, भगवान की सिर्फ अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय प्रीतिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदु जल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि। तो भगवान के परम धाम के बारे में थोड़ा सोचें, थोड़ा चखें, थोड़ा उसको तो गौर से देखें, और उनके और थोड़ा हमारे झांकी, हमारे नजर थोड़ा डाले।
तो ये जो परम धाम जो है भगवान की, हम जो ये बैक टू गॉडहेड क्या कहते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा गौर सा सोचे, और उधर का और इधर का, यानी इस लोक का, इस पृथ्वी लोक का और गोलोक वृंदावन का, वैकुंठ धाम का कितने डिफरेंस है, ये हम कल्पना ही नहीं कर सकते, अचिंतनीय, हम चिंता भी नहीं कर सकते। उसका जो आभास सुनकर हम इतने हो जाते हैं कि शरीर का रोम रोम उठ जाता है, पुलकित तो हो जाता है। तो वो जो धाम जो है, सिर्फ नाम लेने से इतना ये हो जाते हैं हम लोग, एक्सटासी हो जाते हैं, और भगवान के परम धाम, वो धाम की कल्पना चिंतना वो आशा भी नहीं कर सकते हम लोग। तो उसी तरह हम इतने शुद्र है तो भी हम उसको भी प्राप्ति कर सकते, परम गति को प्राप्त कर सकते, परम गति को हम लौट के जा सकते हैं, उसको कहते हैं बैक टू गॉड हेड। हम उसी धाम को रिटर्न जा सकते। रिटर्न यानी बैक टू गॉड हेड मीन्स हम ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म में थे और हम विच्युत हो गए, अच्युत विच्युत, यानी भगवान से हम बिछड़ गए। जैसे एक पिता पुत्र से, पुत्र पिता से बिछड़ जाते हैं, फिर उनके सब जब मिल जाते हैं, तो उसी तरह उसको अच्युत, भगवान जो है अच्युत, हम जो है विच्युत। सो हम विच्युत होकर अभी जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जोड़ने का जो है उसको कहते हैं हमारे टर्म में डिवोशन एंड डिवोशनल सर्विस। भक्ति के साथ, भक्ति युक्त सेवा और भक्ति के साथ हम भगवान को जोड़ेंगे, यानी रिटर्न बैक टू गॉड हेड जाएंगे। तो उसके लिए चाहे परिस्थिति कितना भी कठिन हो, चाहे परिस्थिति कितना भी कठिन हो, और चाहे भी परिस्थिति कितना नेगेटिव हो, कितना भी कष्टदायक हो, कितना भी क्या कहते हैं, कितना भी परेशानी आए, कितना भी मुसीबत आए, तो हम हमारे कौन सा भी स्थिति में हम भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति युक्त सेवा कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और हम क्यों नहीं छोड़ना चाहिए ना, भगवान हमारे सबसे सुहृद व्यक्ति, सुहृदम सर्वभूताना, सिर्फ हमारे लिए नहीं, भक्त की नहीं, अभक्त नहीं, पेड़ पौधे नहीं, सभी को, सभी जीव राशि को, जो 84 लाख जीव जोनी है, वो 84 लाख जीव योनि को सभी को भगवान सुहृद व्यक्ति, सबसे ग्रेट फ्रेंड, सबसे सबसे बड़ी बंधु मित्र वही है भगवान। इसलिए तो वो भगवान है, उनके हृदय जो है इतने महान, इतने बड़ी, इतना बड़ा हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जगन्नाथ जी हाथ फैलाकर बुलाते हैं, बेटा मेरे पास आ जा, मेरा बेटा मेरे पास आ जा। परंतु हम जाना नहीं चाहते भगवान के पास, इसलिए हम इधर सड़े रहे हैं। तो वृत्रासुर जो है, इसलिए इंद्र जी को ये कह रहे हैं कि आप हमको परम गति जाने के लिए हमको अभी पूरा खत्म कर दे। तो इसीलिए वृत्रासुर इंद्र जी को इसी तरह शब्द से उनको कह रहे हैं। और उनका जो कहना जो है, ये हम जिंदगी में कभी भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं, उसको इतने गौर से, इतने जिंदगी में एक एक इंस्ट्रक्शन, भागवत में कहा जाता है, भागवत में एक ही शब्द जो है हम एक बार अपना लिए तो हमारे जिंदगी सार्थक, जीवन सफल। सारे ये जो कितने जन्म का चक्कर, इसी तरह ये कितने जन्म का चक्कर जो है, उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है, परंतु आसान है। देखो एक जो राक्षस के लिए इतना संभव हो रहा है, तो हमारे लिए क्यों ना हो। तो जैसे इंद्र, जैसे वृत्रासुर का इंस्ट्रक्शन, उपदेश, जैसे माथे पे सर पे लेके चले, हृदय में लेकर चले और ऐसे ही करते रहे, तो हमको भी ये ज्ञात होना चाहिए, हम भी ऐसे करना चाहिए कि हम हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में कितने भी मुसीबत आए, कितने भी कष्ट आए, हमारे गुरुदेव, आराध्य गुरुदेव की जो इंस्ट्रक्शन है, उपदेश है, हमारे परम गुरु आराध्य देव
गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी की जो उपदेश है और हमारे गुरुदेव जो श्रील श्रीपाद गुरु महाराज की जो उपदेश है भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट के लिए, हम हमारे तन मन धन शरीर पूरे उसमें ही गवाना चाहिए, उसमें ही सेवा में लगे रहना चाहिए। हो सकता है कभी कभी गिर पड़ते हैं, कभी कभी उठना भी सीखो। जब ये हम गिरना सीखे, गिर पड़े तभी उठना भी सीखना चाहिए। ये नहीं कि गिर पड़े तो गया सो गया, नो। एक दिन जो गया फिर दूसरा दिन वो उठना चाहिए। उठ के जैसे इंद्र जी ने फिर वो तलवार अपने हथियार वज्र को थंडरबोल्ट को फिर इकट्ठा किए और फिर हाथी के ऊपर चढ़े, सवार होकर फिर चल पड़े किसको? शत्रु को दमन करने के लिए, शत्रु को मारने के लिए। क्योंकि वो जो असुर कुल है देवता को मारने के लिए रेडी होते हैं और देवता जो है असुर को मारने के लिए रेडी होते हैं। ये संसार में हम क्या कहते हैं, इसमें हम उलझ गए, क्या कहते हैं, उसमें हम क्या ये फांस में पड़ गए। ये फांस से उबरने के लिए हमको कौन सा भी परिस्थिति आए, कितना भी परिस्थिति प्रतिकूल हो, तो भी हम उसको अनुकूल करते हुए चलता रहना, भक्ति में आगे बढ़े। और चाहे कितने भी मुसीबत से हो, हम उसको कभी भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे ये समाज छोड़ दे, ये देश छोड़ दे, ये शरीर छोड़ दे और ये सभी कुछ छोड़ दे, हमारे रिश्ते नाते, पति पत्नी, पिता माता, भाई बहन, पुत्र कन्या सब छोड़ दे, परंतु भक्ति ना छोड़े। क्योंकि ये जो उपदेश है आराध्य श्रील गुरुदेव की, ये जो उपदेश जो है श्रील प्रभुपाद की, ये जो उपदेश है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। और ये बात हम जब भी अपने आचरण में करते जाएंगे, डिवोशनल सर्विस में, डिवोशन में जितना ही हम आगे करते 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 थकना नहीं, आराम नहीं, आराम सबसे बेकार है, आराम हराम है। परंतु हम ये करना चाहिए कि कितने भी कष्ट हो, हम कष्ट उठाते हैं किसके लिए? उठाना चाहिए किसके लिए? गुरु कृष्ण के लिए। तो ये सब जब भी करते 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 ट्राइंग 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 दे विल कम, वी विल बैक टू गॉड हेड। एक दिन आएगा हमारे भक्ति में इतने हम लीन हो जाएंगे, वृत्रासुर जैसे हो जाएंगे, और आखिर में वृत्रासुर ऐसे ही शरीर छोड़। सो पहले शब्द में आ जाइए, पहले में क्या बोला था फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, वैष्णव मीन्स हाउ टू लिव हिज बॉडी। भक्ति भजन करो, साधन करो, मरते जान ले हो। बंगाली में ये कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है, ये आया हुआ है, कहते हैं भजन करो साधन करो। भजन यानी chanting the holy name means devotional service and devotion, and bhojan means taking the prasadam. So भजन यानी भजन करना, यानी तपस्या भजन साधन जो कहते हैं, भजन करो साधन करो, साधना और भजन भक्ति वगैरह करो, परंतु मरते जान ले हो। मतलब मृत्यु कैसे मरना है वो सीखना चाहिए। कैसे मरना है? ना मनमना भव मत भक्त मज्जाजी मंग नमस्कुरु सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान के शरण में आना चाहिए, पूरा संपूर्ण शरणागति हो जाए। जैसे शरणागति की 6 जो है 6 टाइप्स ऑफ शरणागति, तो उसी तरह भगवान के पूरा अनन्य चिंतन तमाम, पूरा सदैव सदा सर्वदा भगवान के चिंतन में रहना चाहिए। रहने से क्या होगा? ना यम वापी स्मरण भाव क्या तंत्र कले परम। इस शरीर हम छोड़ते ही जिस भाव में रहेंगे उसी भाव में अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति। सो भगवान के कृष्ण की जब हम स्मरण में आएगा, जैसे
पितामह भीष्म शरीर छोड़ते समय हृदय में धारण करके सामने भगवान के श्रीमुख दर्शन करते हुए शरीर छोड़े। और उसी तरह हमारे प्रभुपाद जी, हमारे गुरु महाराज जी जैसे कीर्तन करते हुए शरीर छोड़े और चिंतन करते हुए शरीर छोड़े। श्रील प्रभुपाद जी कथा करते हुए शरीर छोड़े। तो उसी तरह गौर गोविंद महाराज जी भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के कथा करते हुए भगवान के सामने शरीर छोड़े। बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि और भक्त, वैष्णव भक्त इतने आसानी से शरीर छोड़ते हैं। वो जाते हैं पूरा बैक टू गॉड हेड, भगवान के परम धाम चिंतामणि धामम को प्राप्त करते हैं। उसी तरह हम लोग भी ऐसे ही चिंतन में रहे, भगवान चिंतन में रहे, भगवत कथा में रहे, भगवत सेवा में रहे, गुरु की सानिध्य में रहे और ऐसे चिंतन करते करते हमारे सेवा करते करते शरीर छोड़ दे, ताकि वृत्रासुर जैसे और हमारे जैसे पूरा इंद्र जैसे इंस्ट्रक्शन वो उपदेश लेके जैसे ही कर रहे, हम भी ऐसे करते हुए हमारे शरीर छोड़ना सीखना चाहिए। तो ये है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी ड्यूटी है एज ए डिसाइपल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So if any mistake, please forgive me, and if anybody have doubt and anybody can add, so सभी को स्वागत है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास दिया आपने। इट वाज वेरी इंस्पायरिंग एंड या All glories to Sri Guru Maharaj. हरे कृष्णा। Anyone is having any question regarding today's class, they can ask His Grace. By hearing the class of His Grace Paramahansa Prabhu, I actually remembered one of the incident that took place with me in 2011 while I was in NIT Trichy studying MTech. I have attended my first class by a devotee nearby Trichy Institute NIT. So he has asked me the first question, like, why do you think that we should read Bhagavad Gita? And I have told that we should read to know how to live the life. Then he said, yeah, but the thing is, we should read to know how to live rather than how to live. So yeah, I remembered again the point. Yes, I think Jimukta Prabhuji, please unmute yourself and ask. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। किसी भक्ति लाइफ में किसी भी परिस्थिति में विचलित ना होना, थोड़ा टिप्स बताइए। तो भक्ति में तो एक्चुअली जो भक्ति करते हैं तो उनके लिए भगवान पहले तो टेस्ट करते हैं, उसको टेस्ट या एग्जाम कहते हैं। तो कहीं सारे के इम्तिहान देनी पड़ती है। तो जैसे कि पहले तो भक्ति के लिए भगवान की जब भक्ति करेंगे, अन्य अभिलाष शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो बहुत सारे की अभिलाषा वो तो पहले बहु कहीं जन्म से है, तो भी भगवान जानबूझ करके भी वो डालते रहते हैं, थोड़ा क्या कहते हैं उसको, परीक्षा करने के लिए। तो भगवान ट्राई करते हैं। एक्चुअली वो जो है भगवान की माया शक्ति जो है हमको टेस्ट करते हैं। भगवान खुद तो करते नहीं, सिर्फ भगवान के इशारे से सब कुछ हो जाते हैं। तो जैसे कि भक्ति में पहले धन, दौलत, यौवन, पूजा, प्रतिष्ठा,
ये सभी जो है कामिनी कांचन, ये सब जो है हमारे भक्त की पहला जो है क्या कहते हैं, रुकावट देने के लिए, ब्रेक देने के लिए, हमको भक्ति से नीचे नीचे की ओर जाने के लिए ये सब जो है। तो इसीलिए वो सब जो है प्रतिकूल है, और वो सब जो है बाधा जो है उसको कहते हैं प्रतिकूल। तो जैसे सिंपल ये ऑल ओवर ओवरऑल में कह रहा हूं क्या है ना, ये जो है जैसे उपदेशामृत में जो पहला श्लोक है, और ये जो पूजा प्रतिष्ठा कामिनी कांचन, ये जो है भक्ति के लिए जो है पूजा प्रतिष्ठा, पूजा और प्रतिष्ठा मेरे को क्या है, जैसे कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टम में क्लियरली ये है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतात भक्ति हेतु की त्वयि। तो हमारे जो जो ये सब जो है, न धनम, धन भी बहुत आ जाएगा, न धनम न जन्म, और पीछे पूजा प्रतिष्ठा इसको ही कहते हैं। पीछे बहुत सारे लोग हाँ वाह वाह ओ प्रभु जी सो नाइस, ओ सो वेरी गुड। तो ये जो जो है, और उसी तरह सुंदर स्त्री भी आते रहेगी, और बहुत सारे इसी तरह पूजा प्रतिष्ठा कामिनी कांचन और बहुत कुछ भी आएगा। तो उसको जो है हम कितने भी आए, जैसे कहते हैं ना दुख आए सुख आए, उसी में धीर व्यक्ति की जैसा सबर पर्सन जैसे रहेंगे, सब बैलेंस करके चलते रहेंगे हमारे भक्ति में। सपोज छोटा सा उदाहरण क्या है, कोई सेंटर में, हमारे सेंटर में राइस डाल के अलावा कुछ नहीं मिलता है, और कोई सेंटर में पनीर भी मिलता है। जहां पनीर मिलता है वहीं भाग के जाएंगे, और फैसिलिटी एसी वगैरह मिल रहे हैं, तो सब कुछ पैसे भी ज्यादा है, सब कुछ फैसिलिटी है, वहीं जाके भक्ति करेंगे, जाके सेवा करेंगे। इसको ही प्रतिकूल कहते हैं कि जिस अवस्था में जहां जहां जो जो मिला है उसी में रहते हुए भगवान की भक्ति करो, गुरु की सेवा करो। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल लग रहा है ना, कि हम कहीं भी रहे, किधर भी रहे, परिस्थिति कैसे भी हो, उधर रहते हुए हम भगवान के भजन साधन करें। सपोज मेरे को बुखार आया, कोरोना आया, कोरोना आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो गया, तो ये कोरोना मेरे को आया, तो भी कोरोना आते हुए भी हम सुबह उठ के मंगल आरती करना चाहिए। तो करने से तो उसको प्रतिकूल जो है, प्रतिकूल अवस्था में रहते हुए भी हम भगवान की चाहे मंगल आरती नहीं कर पाए, उठ के तो बैठ के तो आराम से आंख खोल के भगवान को तो एक बार प्रणाम करें, और भगवान के नाम तो ले सकते हैं। तो उसको ही कहते हैं प्रतिकूल अवस्था में रहते हुए भी भगवान को करे। जैसे कि मृत्यु अवस्था, कोरोना मतलब गोइंग टू डाई, तो उसी तरह वृत्रासुर भी मरने के लिए जा रहे हो, और वो उपदेश दे रहे उल्टा वाले को, शत्रु वाले को करे कि आप लाके मेरे को मारो। व्हाट डज दैट मीन? ये कैसा असंभव बात कह रहे हैं, अप्रिय सत्य कह रहे वो, क्योंकि वो उसी समय भगवान के स्मरण में है, और उसी समय उसको पता है उसी समय वो शरीर छोड़ दे तो परम गति प्राप्त होगा। उसी तरह कोरोना आया तो उससे अच्छा है कोरोना की चिंता नहीं करके भगवान की करुणा कैसे आए उसके लिए चिंता किए, उसके लिए चिंता करें तो सबसे प्रॉब्लम सॉल्व। तो उसको ही कहते हैं प्रतिकूल। तो जैसे कोरोना आया मेरे को, मैं क्या करना चाहिए, उठ के नहीं तो सोते हुए भगवान की चिंतन करना चाहिए। चाहे हार्ड लेबर कुछ ना कर पाए, चाहे लेक्चर दे नहीं पाए, अपने तब भजन कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना तो कर सके अपने लिए। श्रील गुरु महाराज, आराध्य गुरु महाराज वही चाहते हैं, जिस स्थिति में जो कोई रह रहे हैं, कोई साइंटिस्ट बड़े बड़े जैसे एमटेक बीटेक पीएचडी वाले हैं, तो वो उनके लेवल में सेवा करें। मेरे जैसे गधे मूर्ख है, बस झाड़ू मारो, हरिनाम लो और झाड़ू मारते रहो, कचरे डब्बा क्लीन करते रहो, बस उतने में खुश, भगवान खुश हो जाएंगे, गुरु महाराज खुश हो जाएंगे। तो जो कोई जो कुछ जानते हैं, जो स्थिति में है, उसी स्थिति में रहते हुए कितने भी बाधा है, वो बाधा को नहीं देखना चाहिए,
बाधा की ओर देखना ही नहीं, चाहना ही नहीं, सोचना ही नहीं। क्या करना चाहिए? कृष्ण की ओर, गुरु महाराज के उपदेश की ओर, और परम गति प्राप्त करने के लिए जो भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए, उसी की ओर सोचना चाहिए, देखना चाहिए, चाहे बाधा कितना भी आए। ये कोरोना सबसे मेरे को अच्छा पॉइंट, अच्छा एग्जांपल लगा। सो आई थिंक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद महाराज जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। महाराज जी, धन्यवाद महाराज। प्रणाम। I wish, bless me, I can speak as vibrantly and as lively. It was wonderful. Please. मेरा प्रश्न है कि आपने आज च्युत और विच्युत, दो शब्द यूज किए अपने प्रवचन में। तो भगवद गीता 15वें अध्याय में श्लोक संख्या 16 में है, भगवान कहते हैं कि द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, है ना? क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। तो कौन कहाँ पर है, कहाँ जाना है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली 8वां अध्याय के हिसाब से, और सभी भगवद गीता में कहते हैं कि हम भगवान के सनातन, भगवान तो सनातन है और हम जीव भी सनातन है, इसलिए कि हम जो जीव है भगवान के पास जाना चाहिए। तो क्योंकि हम सनातन के सनातन अंश विशेष है, तो हम सभी भगवान के पास लौट कर जाना चाहिए। इसलिए हमको ये भगवत भक्ति करते हुए भगवान के पास जा सकते हैं। और महाराज जी, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप थोड़ा बोलिए। नहीं, आपका, मैं कह रहा हूँ कि भगवान दो कैटेगरी बता रहे हैं, दो, कि इस संसार में जो जीव है उनको च्युत करते हैं। हाँ जी। और जो भगवान के धाम में है वो अच्युत है ना? तो अनादिबद्ध, मतलब अनादि काल से ही हम यहाँ पर च्युत अवस्था है ना, च्युत अवस्था ही, अब यहाँ से छूट के जाना है वहां है, हाँ जी, वहां जाके अच्युत अवस्था को प्राप्त करना है, प्राप्त करना है। तो यही तो खेल है भगवान का, कि भगवान ने हमें च्युत अवस्था ही, च्युत ही हमें बनाया। हमारा गठन यहाँ पर भौतिक जगत में जब तक है हम च्युत है, बार बार गिरते हैं ना, बार बार गिरते हैं, बार बार गिरते हैं। हाँ जी। इस गिरने से भी मुक्त होना है तो हमें अच्युत पद को पाना ही पड़ेगा। जैसे हमारे अच्युतानंद अच्युत प्रभु है ना, हाँ जी। हमें भी सबको अच्युत होना है। हाँ जी। भगवान के आश्रय में आकर। इसके बारे में आप कुछ कहिए। और क्या कहूँ महाराज, आप हमारा तो पूरा कहते हैं। Yeah, thank you, Prabhuji. Maybe we can conclude, it is already time. Okay. Rajpat Maharaj is having a point. Maharaj ji, please. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा याद करना चाहता हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं है। प्लीज, वेलकम वेलकम महाराज, ऑलवेज वेलकम। परमिशन फ्रॉम द स्पीकर एज वेल एज द मॉडरेटर प्रभु जी। या प्लीज वेलकम। हरे कृष्ण। प्रतिकूल परिस्थिति हमारे प्रभु जी पूछ रहे हैं, मुक्त प्रभु जी,
तो हाँ जी। हम हमेशा सोचते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति दूसरा और कोई है या दूसरा और कुछ चीज है। यह भी हो सकता है कि प्रतिकूल परिस्थिति का कारण मैं खुद हूँ, मेरा प्रतिकूल परिस्थिति का कारण मैं खुद हूँ। तो भगवान को यह भी ऑप्शन देना चाहिए हम कि यह भी हो सकता है मैं खुद कारण हूँ, तो मेरे को भी कृपा कीजिए, हमको जानकारी करा दीजिए, कुछ ज्ञान करा दीजिए, एनलाइटन करा दीजिए। एनलाइटन नहीं होता है ना सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ में आत्मदर्शन का क्या है? आत्म का अच्छा बुरा सब जानना है ना, यही आत्मदर्शन हो गया। तो जब हमको पता चलेंगे, ये एक चीज है। दूसरा जो है, हमको खुद को सुधरने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर हम खुद सुधरने के लिए तैयार नहीं है, चाहे भगवान जितना भी अरेंजमेंट करे, चाहे भक्त लोग जितना भी अरेंजमेंट करे, है ना, तो हम शायद बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर हमारे उद्देश्य अच्छा रखेंगे तो एडवर्स सिचुएशन तो कुछ है ही नहीं, है ना। हाँ जी। एडवर्स सिचुएशन एक्चुअली है नहीं, बिकॉज ऑफ मेरा कंडीशन जो है, मैं जैसे सोचता हूँ, मेरा आसक्ति से आता है ये डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये भी हो सकता है, जेन्युइनली भी हो सकता है, बट 90% जो है, हम खुद का जो माइंडसेट जो है ना, वो इम्पोर्टेंट। माइंडसेट बदलने से बहुत कोई बहुत परेशान है कि मेरे को ये नहीं वो नहीं, लेकिन कोई दूसरा है, उसी में संतुष्टि है। तो लेकिन हमको वो आदमी नहीं दिखता है, जिसके पास ज्यादा है वो आदमी दिखता है। तो इसलिए हमारा दृष्टि, आपने ऑलरेडी बताया है कि हमारा दृष्टि सही रहे, चिंतन सही रहे और सोचन अच्छा रहे, तो बहुत सारे शायद प्रॉब्लम्स ना लगे। तो यही है, हमको खुद सुधरने का, पहले हमको खुद सुधरना है, इसके बाद भगवान से आशा कर सकता है कि बाहर का जो चीजें जो है वो भगवान बदल ले। तो सब लोग कोई अंदर से ना बदले, फिर भगवान किसको बदलेंगे? भगवान बदलने के लिए हम ही को बदलना है, हम सबको बदलना है। तो बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट बताए कि आप ये कह रहे हैं कि हम लोग किसी भी स्थिति में हम अपने को सुधारना चाहिए। अपना जो खराब अभ्यास है, खराब आसक्ति है, उसको छोड़ के भगवान की ओर देखना चाहिए। जैसे श्रील गुरु महाराज जी ने भी ऐसे कितने भी परिस्थिति आया, परंतु गुरु महाराज किसको कभी कुछ नहीं बोलते। गुरु महाराज एक ही देखते थे, उनके गुरु की सेवा देखते थे। श्रील प्रभुपाद जी भी ऐसे ही उनके गुरु की सेवा देखते थे। उसी तरह ये ही जो होलिनेस भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज भी अच्छे हमको फिर याद करवा दिए कि च्युत अच्युत, तो हम वही अच्युत के पास जाना चाहिए। और जिमुक्त प्रभु जी का क्वेश्चन भी इतने बढ़िया अच्छे क्वेश्चन है कि हम और भी ही जो होलिनेस भक्ति स्वरूप ब्रजपति महाराज जी ने और भी उसको क्या करे, खोल के हमको पूरा रस की तरह पिला दिए हैं कि हम इसी तरह अपने दोष को देखते हुए और अपने दोष को पूरा निकलने के लिए कोशिश करते हुए आगे को भगवान के और गुरु की सेवा में कैसे जाएं, और हमारे जो ये जब जो बुरे आदतें हैं, बुरे कथा जो है, वो सब छोड़ के हम भगवान के कृष्ण की सेवा में कैसे लगे रहें। और उसको हम ये एक्चुअली जीव, प्रत्येक जीव छोड़ना नहीं चाहते, परंतु महाराज जी जो बोले नहीं, हमारे जो ये जो है अभ्यास जो है छोड़ना चाहिए। हम नहीं छोड़ेंगे तो कैसे ये अच्छे अमृत कैसे पाएंगे? बीज को पहले छोड़ना पड़ेगा ना। तो उसी तरह हम ये सब छोड़ के हमारे अमृत के लिए, हमारे जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया हुआ है गुरु और गौरांग की सेवा के लिए, उसमें ही लगे रहे। अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और जी मुक्त प्रभु जी, सभी को श्रोता वृंद को भी बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Krishna. Yes, Prabhuji, we can conclude for the day. ओके। सो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जय, श्रील श्रीपाद गुरु महाराज जय, भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट की जय, भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट समस्त गौर भक्त वृंद की जय।
निताय गौर सीता परमानंदे हरि हर। His Grace Paramahansa Prabhu ki jai. Hare Darspat Krishna. Guru Maharaj. Thank you all for joining. See you all in tomorrow's class.